Iti Natya, a collaboration by the Valley of Words Art and Literature Festival along with Young Indians, which is a body of Confederation of Indian Industry, was conceptualized 4 years back. When the thought was कि आजकल थिएटर स्कूल में थोड़ा शायद कम हो गया. I still remember my first stage presence was back when I was, I think, 8 years old, and I was given the role of a Pandu Havaldar. And over there on the stage, I was simply to move around holding a lathi, wearing a khaki short, and saying police, police, police. And I was doing that for maybe 4 or 5 times. But that day started my love affair with the stage and with the mic probably. To the day today where, people say that I have probably a verbal diarrhea that I can't stop when I take the mic. Iti Natya over the last 4 years has been working on various themes, including Vasudev Kutumbakam, the enactment of Shakuntala by the noted and the celebrated playwright Kalidas. And this year, to celebrate the 25th year of Uttarakhand, we wanted to have the theme around our hills from the place where we belong. So bringing to you today is one of the finest performances from the Iti Natya that happened in May, that is around the stories from the hills, and we will have the Himjyoti school performing for us today. Just to take you a bit further into the whole culture and what we have been celebrating, WOW is not just a literature festival. It celebrates various forms of arts. Dance, music, and theater is one of the prominent one of them. With the able guidance of Dr. Sanjeev Chopra and Ma'am Rashmi, along with the much expert curation of Jyoti Dhawan ma'am, Shalini ma'am, Tanya ma'am, and the team of YI who's also joining us, Sadika, Harja, Sishti there. So we've been able to curate something that has helped tier 2 and tier 3 schools of the city to take some large stage and come and show their talent. I'll request Shalini ma'am if you can just come and share your experience of how Iti Natya has been built up in the last few years, and then without wasting much time, we'll have the school performance. Shalini ma'am, please. I don't want to take much time. The children are ready and it's very hot, so they should start. But again, it's like, for me, I feel like the mother. And they're doing, the kids are phenomenal. The themes we give them are very difficult, not easy. The teachers behind these children, the schools, they support them. And the product that you see on the stage is something which it can compete with anything anywhere in the world. So I won't take much time. We all want to see the play once again. All the best to all of you. Thank you. Thank you, Shalini ma'am. And she's pretty much a mother and a principal and a coordinator all in one, giving a lot of creativity and guidance to all of us. Because theater का एक competition arrange करना आसान नहीं है. It doesn't just mean that you give a topic and people start talking about it. It requires a lot of background कि इस बार की theme क्या होगी. It requires a lot of guidance to the participant कि आपको stage पे कितना time मिलेगा, क्या करना है, क्या language होगी. It requires a lot of preparation where we deal with 250 students in a single day. Imagine this year we had 13 plays, 13 acts, one after the other. It's a full day. It starts, I think, 7 or 8 a.m. in the morning. The preparation starts and we end at about 5 p.m. So all of that has been happening in the background with the WOW volunteers, Shalini and her team, and the YI folks who are joining me over here. So again, without much ado, handing over the mic to Himjyoti School for their lovely and excellent performance that we are putting at the main stage of WOW today. Thank you so much. धरती पर जीवन की विविधता, पेड़, पौधे, पक्षी, कीट और सूक्ष्म जीव एक जटिल लेकिन संतुलित तंत्र का हिस्सा है जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। यह संतुलन ही जीवन को संभव बनाता है, लेकिन आज यह तंत्र खतरे में है। जंगल कट रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही है और कई प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर है। यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का भी सवाल है। जैव विविधता का पतन केवल प्रकृति को नहीं बल्कि मानव समाज को भी कमज़ोर बनाता है।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज हम हिमज्योति विद्यालय की छात्राएं एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही हैं। यह नाटक इसी संकट की कहानी है, एक चेतावनी, एक संवाद और एक समाधान की तलाश। अब समय आ गया है कि अब हम समझें कि प्रकृति को बचाना ही खुद को बचाना है। आपको याद है हम कैसे होली के त्योहार में फूलों के लड्डू खाया करते थे, पर इस बार तो होली के फूल है ही नहीं। अरे बेटा, आधे से ज्यादा घरों में तो फूल लग चुके हैं। लगता है इस बार भी हम फूल नहीं लगाएंगे। जो पहले हुआ करती थी, जैसे त्योहारों में तो हमें देखने को नहीं मिलते। फूल देही में फ्योली के फूल कहाँ से लाए? ये पेड़ पौधे तो सब सूख गए हैं। गाँव में भी अब सिर्फ बुजुर्ग ही रह गए हैं। शहर में रहने की इच्छा ने लोगों को गांव से दूर ही कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पहुंच चुके हैं पाली गांव में। तो इस गांव की बदलती स्थिति तो आप देख ही सकते हैं। कहाँ ये गांव एक ज़माने में हरा भरा और खुशहाल हुआ करता था, लेकिन आज ये बंजर बन चुका है। तो आइए लोगों से पूछते हैं इस मामले में उनका क्या कहना है। अब क्या ही कहना है, इस गांव के बारे में रोज कुछ ना कुछ तो छपते ही रहता है। और यहाँ के पेड़, अरे बहन थोड़ा रुक जाओ। और यहाँ के पेड़ काट के तो लोगों ने होटल बना दिया। बल अब क्या अपनी गाय भैंस के लिए चारा इनके होटल से मंगवाऊं? हाय मेरी राम प्यारी, हाँ मेरी गाय पिछले हफ्ते तो मरी थी। और पता है क्यों? लोग आए, लोगों ने वो कुरकुरा, बिस्कुट, चिप्स खाया और मेरे खेतों में फेंक दिया। और वह प्लास्टिक मेरी राम प्यारी ने खा लिया। मेरी राम प्यारी राम को प्यारी हो गई। हाय मेरी राम प्यारी। तो देखा आप सभी ने कि ये लोग कितनी सारी प्रताड़नाएं झेल रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई खबर के साथ। पाली गांव, इस गांव में तो मैं गया हूँ और ये लोग भी कुछ जाने पहचाने से लगते हैं, लेकिन इस गांव की हालत को क्या हो गया? क्योंकि जब मैं गया था तब तो अरे क्या लिखूं, कुछ समझ नहीं आता। जैसे ही कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, ये गाड़ियों का हॉर्न, शहर का शोर कुछ सोचने ही नहीं देते। हेलो पार्थ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वैसे आज इतने दिनों बाद कैसे फ़ोन करना हुआ? वैसे तुम्हारी आवाज़ सुनकर नहीं लगता कि तुम ठीक हो। क्या बात है? अब क्या बताऊँ, शहर में मेरा मन बहुत अशांत सा हो गया है और लेखन के विषय में भी मेरे पास कुछ नहीं है। वैसे मैं एक जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ पर तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी और शायद लेखन के विषय में भी कुछ मिल जाए। अच्छा, तो ये जगह है कौन सी? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बसा एक छोटा सा गांव पाली।
जहाँ पर पश्चिमी सभ्यता की छाया नहीं पड़ी है। वहाँ का मनमोहक वातावरण तुम्हें वहाँ से बांधे रखेगा। अच्छा, अब तो मैं पाली गाँव अवश्य जाऊंगा। ठीक है, जब तुम पाली गाँव से लौट आओगे तब मिलते हैं। ठीक है, तुमसे आने के बाद मिलता हूँ। अरे साहब, गाड़ी तैयार है। अच्छा, आया। अरे कुछ नहीं, आगे आंदोलन चल रहा है। आंदोलन? हाँ, क्या करे, सरकार पेड़ ही इतने काट रही है। अरे ये सरकार भी ना। साहब, आपको पता है हम शहरों की गलियों से बहुत दूर आ चुके हैं। हाँ, और यहाँ पर सब कुछ कितना सुंदर है। अरे साहब, आगे रास्ता मुझे बहुत संकरा लग रहा है, तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। अच्छा, तो ठीक है, मैं पैदल ही चला जाता हूँ। ठीक है साहब। ठीक है। अच्छा, तो ये है पाली गांव। ये तो वाकई में बड़ी ही सुंदर जगह है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सीढ़ी नुमा खेत, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, मनमोहक स्वागत। और बच्चों, तुम मुझे ये फूल क्यों दे रहे हो? ये फूल डे का त्योहार है। फूल दे, ये क्या होता है? फूल डे उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्योहार है। चला हमारे यहाँ फुलारी एक महीने के लिए फूलों को अच्छा, तो इसमें तुम लोग क्या सौदा क्या करते हो? सौदा इन दिनों हम अलग अलग प्रकार के फूल लोगों के थैलियों में डालने जाते हैं। सुबह सूरज उगने से पहले हम फूल लेने जाते हैं और लोगों की थैलियों को फूलों से भर देते हैं। अरे वाह! और दिवाली के समय हम जितने फूल लेकर आते हैं, उन्हें अपनी थाली में सजाकर सौदा मिठाई रखकर घरों में जाते हैं और सबके झूठा बोलेना तो आपको पता है, सभी हमारी थाली में जवनिया चटनी डाल दिया करते हैं और फिर हम उसे अपने मनपसंद सोने के लड्डू खाते हैं। तो मतलब मुझे भी तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। अरे वाह, उत्तराखंड की कितनी सुंदर संस्कृति है। अब तो मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा, लेकिन पहले रहने की कोई जगह ढूंढ लेता हूँ। जी सुनिए। जी बोलिए। इस गांव का मुखिया कौन है? इस गांव का मुखिया तो मैं ही हूँ। क्यों, आपको कुछ काम था? जी, मैं शहर से आया हूँ और मुझे पास में ही कहीं रहने को एक कमरा चाहिए। क्या मुझे कहीं एक कमरा मिल सकता है? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे गांव में आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और आप तो यहाँ पर मुफ्त में रह सकते हैं। आपका खाना पीना रहना सब कुछ तो हमारे साथ ही हो जाया करेगा। बस आप तो यहाँ की प्रकृति का आनंद लीजिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आइए। अरे मुखिया जी, गांव में ये सब क्या हो रहा है? अरे आज फूलदेई का त्योहार है ना। अच्छा हाँ। तो यहाँ पर कुछ लोग उत्तराखंड का प्रसिद्ध नृत्य जोड़ा कर रहे हैं। अरे वाह। आइए यहाँ चलते हैं और यहाँ पर मीठे मीठे पकवान बन रहे हैं। आइए, यहाँ पर लोग पेड़ों की पूजा कर रहे हैं क्योंकि यही तो हमारी धरोहर है। और यहाँ पर कुछ लोग एपर बना रहे हैं
और आपको पता है, इन सब लोगों ने पहाड़ी पहनावा पहना हुआ है। मुखिया जी, आपके गांव की संस्कृति तो बड़ी ही सुंदर है। वो तो है। क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ? मैं तुड़े मंजुली राधा, रूम जानी ठुम राधा, मैं तुड़े मंजुली राधा। आज क्या लिखूं? हाँ, पाली गांव के ही विषय में लिख लेता हूँ। वहाँ का फूलदेई का पर्व और पेड़ों की पूजा। अरे देखो देखो, जब से हमारे गांव की तस्वीर इस अखबार पे छपी है ना, तब से तो यहाँ लोगों का आना जाना बनता रह रहा है। मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है हमारा गांव। अरे सुनिए जी बोलिए। वैसे इस गांव का मुखिया कौन है? इस गांव का मुखिया मैं ही हूँ। क्यों, आपको कुछ काम था? वैसे ये जगह तो बहुत सुंदर है। वो तो है। मैं कह रहा था ये जगह तो बहुत सुंदर है, क्यों ना यहाँ ज्यादा नहीं बस एक तो बढ़िया से होटल बनवा दे। इससे आपका भी फायदा और हमारा भी फायदा, और पेड़ भी ज्यादा नहीं कटेंगे। वैसे बात तो आपकी सही है, और रोजगार की तो हमें बहुत ज़रूरत है, और पेड़ों की किसको पड़ी है। बस आप तो यहाँ कल से काम शुरू करवा दीजिए। ठीक है, फिर आता हूँ कल से। ठीक है। कल से होटल बनेगा। लेखक पार्थ के लेख से मिली पाली गांव को प्रसिद्धि। तो आइए लोगों से पूछते हैं यहाँ आकर उन्हें कैसा लग रहा है। तो यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी जगह है। हम तो सोच रहे हैं अगली बार से भी यही आएंगे। हाँ हाँ, यही आएंगे। पेड़ पौधे और हवा, जीवन जीने की यही दवा, और हम यहाँ दवा लेने आए हैं। हाँ हाँ, दवा लेने आए हैं। गिराया फूल जैसा। पहले आए थे तब जगह कितनी सुंदर थी, अब तो इस जगह में कोई खासियत ही नहीं रही। चलो। मानव कितना स्वार्थी हो गया है। अपनी प्रसन्नता के लिए इन शहरियों ने बेचारे गांव वालों को दुविधा में डाल दिया है। क्या हालत हो गई है पाली गांव की। लेकिन पाली गांव के लिए मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आखिरकार कहीं ना कहीं मैं भी तो इन सब का जिम्मेदार हूँ। अरे बच्चों, तुम ऐसे उदास होकर क्यों बैठे हो और मुझे फूल नहीं दोगे? ये तो फूलदेई का पर्व है ना। काका, फूल कहाँ से लाए? सारे फ्योली के फूल तो नष्ट हो गए हैं। तुम निराश मत हो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपना गांव कैसा चाहिए? मुझे एक हरा भरा गांव चाहिए, उसमें पेड़ पौधे पक्षी और झरना भी। और तुम्हें? मुझे भी यही चाहिए। काका, पहले हमारा गांव भी तो ऐसा ही हुआ करता था ना? क्या ये पहले जैसा नहीं हो सकता? ज़रूर हो सकता है। तो चलो तुम्हारे इस गांव को तुम्हारे सपनों जैसा सुंदर बनाते हैं। जाया फूल जैसा खिली राया, गिराया जा गिराया फूल जैसा
धरती देशी जीवन दान, हम भी इसका करें सम्मान। अरे जल्दी जल्दी सभी हरेली की तैयारी करो। जी मुखिया जी। ये पेड़ काटने वाले लोग आज फिर से वापस आ गए। अरे आप मेरी बात सुनिए, अब आप इस काम को यहीं पर रोक दीजिए। क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, लेकिन अब आप इस काम को यहीं पर रोक दीजिए। हमारे पेड़ नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे।